இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரியும் போது 2 பிள்ளைகளும் ராவி நதியில் தவறி விழுந்து மரித்து விட்டார்கள். பிறகு அவர் மற்றும் அவர் மனைவி பிள்ளைகள் இழந்த துக்கத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்து இருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் செய்து வரும் சத்திய வேத ஆராய்ச்சி ஊழியம் ஆண்டவருடைய கிருபையால் வல்லமையாக நடைபெற்று வருகிறது. அவர்கள் கொடுக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம். இந்திய தேசத்தில் எழுப்புதல் வேண்டும். இயேசு சிந்திய ரத்தம் தெளித்திட வேண்டும். ஆத்தும அறுவடை செய்திட வேண்டும். சீடரை எங்கும் அனுப்பிட வேண்டும். கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். இந்தியாவில் வாழ்கின்ற மக்கள் ஒன்று கூடணும். இந்தியாவில் வாழ்கின்ற மக்கள் ஒன்று கூடணும். இமய முதல் குமரி வரை ஜெபாவி பொழியணும். இமய முதல் குமரி வரை ஜெபாவி பொழியணும். இமய முதல் குமரி வரை ஜெபாவி பொழியணும். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். வறுமை பாவத்திலே சாகும் ஜனத்தை மீட்கணும். வறுமை பாவத்திலே சாகும் ஜனத்தை மீட்கணும். சாதி மத பேதமின்றி இயேசு நாமம் போற்றணும். சாதி மத பேதமின்றி இயேசு நாமம் போற்றணும். சமத்துவ சமுதாயம் சத்தம் இன்றி மலரணும். சமத்துவ சமுதாயம் சத்தம் இன்றி மலரணும். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சீடனும் ஜாமக்காரன் யுத்த வீரன் எழுமணும். சீடனும் ஜாமக்காரன் யுத்த வீரன் எழுமணும். நாடெங்கும் நற்செய்தி திருவசனம் விதைக்கணும். நாடெங்கும் நற்செய்தி திருவசனம் விதைக்கணும். நானிடம் எங்கும் இயேசு திருநாமம் தொனிக்கணும். நானிடம் எங்கும் இயேசு திருநாமம் தொனிக்கணும். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும்.
கேட்கும்போது, வானத்தில் தூதர் கூட்டம் எக்கால துணி கேட்கும்போது, இயேசு ராஜா வருவாரு எதிர்கொண்டு அழைக்கணும். இயேசு ராஜா வருவாரு எதிர்கொண்டு அழைக்கணும். பரிசுத்த கூட்டமாக பரலோகம் போகணும். பரிசுத்த கூட்டமாக பரலோகம் போகணும். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். இந்தியாவில் வாழ்கின்ற மக்கள் ஒன்று கூடணும். இந்தியாவில் வாழ்கின்ற மக்கள் ஒன்று கூடணும். இமய முதல் குமரி வரை ஜெபாவி பொழியணும். இமய முதல் குமரி வரை ஜெபாவி பொழியணும். இமய முதல் குமரி வரை ஜெபாவி பொழியணும். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிலுவை கொடி பறக்கட்டும், சீயோன் ராஜா வருகிறார். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். சிங்கம் போல நடந்திடு, சிறுநரிகள் ஓடிடும். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு. पवित्र आत्मा பரிசுத்த ஆவி அது இந்தியில் சொல்றது கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும். அது பரிசுத்த ஆவி, பரிசுத்த ஆவி, பரிசுத்த ஆவியானவர். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆள் தத்துவம் உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆமாம், சரி, ஓகே. So एक्चुअली तमिल बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए दो शब्द किया गया है, पवित्र आत्मा और व्यक्ति के रूप में भी लिखा गया। जैसे इंग्लिश में भी होली स्पिरिट करके लिखा है, अलग शब्द नहीं है। पवित्र आत्मा मतलब होली स्पिरिट है, लेकिन तमिल बाइबल में दो शब्द यूज़ किया गया है, एक पवित्र आत्मा करके, दूसरा कैसे बताएंगे, व्यक्ति के रूप में उसको दिखा गया है। पवित्र आत्मा और व्यक्ति के रूप में दिखा गया पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। बताने वाला परिशुद्ध आवियानवर है। यस पवित्र आत्मा हमारा सब कुछ मालूम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हम दिमाग को अपना सेंटर में रख लेंगे, कोई आपके दिमाग के इधर उधर जाने की जरूरी नहीं। हालेलुया। ओके, ठीक है। एक वचन है संगीतम 51, उसमें भजन संगीता सीट में है, भजन संगीता 51 का 13। संगीतम 51:11 உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவி என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும்। आप पढ़ना, हिंदी में पढ़ो, पंजाब में पढ़ सकते। हालेलुया। हालेलुया। पंजाब में, पंजाबी में உமது சமூகம் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது। आपकी उपस्थिति, சமூகம் என்றால் என்ன? उपस्थिति का मतलब क्या है? उपस्थिति, प्रेजेंस। समूगम मोसे जब आता वक्त समूगम आगे चलता था। जब मूसा के समय में परमेश्वर का उपस्थिति आगे आगे चल रहा था। समूगम என்றால் மேகஸ்தம்பம், அக்னி ஸ்தம்பம்। उपस्थिति का मतलब जो मेघ का खंबा है और अग्नि खंबा है, அதுதான் சமூகம், वो उपस्थिति है। இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर जो लिखा है, அது பழைய ஏற்பாட்டில் சமூகம் நமக்கு முன்னாடி போகும்। जो पुराने नियम में जो उपस्थिति है हमारे आगे आगे चलता है। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் नया नियम में பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நமக்குள் வந்து நம்மை நடத்துகிறார், हमारे अंदर से हमें चलाता है। அங்கதான் சமூகம் பிரசன்ஸ் வருகிறது, वहां पर उपस्थिति आता है। हालेलुया। हालेलुया।
பழைய ஏற்பாட்டில் அபிஷேகம் வேறு, புதிய ஏற்பாட்டினுடைய அபிஷேகம் வேறு. पुराने नियम में जो दिया गया अभिषेक अलग है, नया नियम में जो दिया गया अभिषेक अलग है। அது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? अब में से कितने लोग इसको विश्वास करते हैं? அப்போ பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அபிஷேகம் எப்படி இருக்கு, புதிய ஏற்பாடு அபிஷேகம் எப்படி இருக்கு? जो पुराने नियम का अभिषेक क्या था, नया नियम का अभिषेक क्या है? நீங்க யாராவது சொல்ல முடியுங்களா பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அபிஷேகம் எப்படி இருக்குன்னு? कोई बता सकते हैं ये दोनों का फर्क क्या है? पुराने नियम में जो अभिषेक दिया गया और नया नियम में जो अभिषेक हमने पाया गया, इसका दोनों अंदर क्या है? कोई बता सकते हैं? और कोई? जी। ओल्ड टेस्टमेंट अभी देखो जी। दावीद के ऊपर एक अभिषेक आया, दाऊद के ऊपर एक अभिषेक था, लेकिन वो अभिषेक आदमी को मार देता है। वो अभिषेक लोगों को मार डाल देते हैं। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जो अभिषेक है वो आदमी का अपना तरफ खींच लेता है। जो नया नियम का अभिषेक अपने तरफ खींच लेता है दूसरा। हालेलुया। हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அபிஷேகம் पुराने नियम का अभिषेक எப்படியாப்பட்ட காரியங்களையும் அதை வெளிப்படுத்தி ரத்தம் சிந்தல் வைக்கிறது, ரத்தம் சிந்த வைக்கிறது. जो पुराने नियम में जो अभिषेक ये था कि वो खून बहाना पड़ता था। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஆனால் பழைய புதிய ஏற்பாட்டில் நேசிக்க வைக்குது। लेकिन जो नया नियम में जो अभिषेक हमें मिला है वो हमें प्रेम करने के लिए प्रेमी बना देता है। அல்லேலூயா। हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அபிஷேகம் पुराने नियम के अभिषेक சிம்சோன் மேலே இருந்தது। सिमसोन के ऊपर था। एक टाइम में 3000 பேர் சாகடிச்சிச்சு। एक ही बार में 3000 लोगों को मार डाल दिया। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஆனால் புதிய ஏற்பாடு அபிஷேகம் 3000 பேர் ரட்சிப்புகளை நடத்தினார்। लेकिन नया नियम में जो अभिषेक पाया था तो उनके द्वारा 3000 लोग उद्धार पाए। அதனால நீங்க தப்பி தவறி கூட इसलिए சிம்சோன் அபிஷேகம் என் மேல வரணும்னு கேட்க கூடாது। इसलिए गलती से भी आप ये मान लेना कि सिमसोन का अभिषेक मेरे ऊपर दे दे प्रभु। அல்லேலூயா। हालेलुया। इसलिए அந்த அபிஷேகத்தை குறித்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும்। इसलिए अभिषेक के बारे में सही तरीका से जानकारी रखना बहुत जरूरी है। அபிஷேகம்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? अभिषेक इसका अंदर क्या है? அபிஷேக் அது நம்ம சொல்கிறோம்ல, ஒரு வால் கிளாக் இருக்குன்னா அந்த வால் கிளாக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் என்னென்ன சொல்லுவோம்? जो घड़ी है, घड़ी के अंदर क्या है करके हम पूछेगा तो इसका अंदर क्या क्या है करके तो हम बता देंगे। इसमें कांटा है, उसमें एक फ्रेम है, एक नीडल है, अंदर एक मशीन है। कांटा है, मशीन है, एक फ्रेम है, नंबर्स है, हम बता देंगे। वैसे अभिषेक के अंदर क्या क्या रहता है पूछ रहे? तो अभिषेक के अंदर क्या क्या होता है? परमेश्वर का सामर्थ, प्यार, दया, कृपा, धीरज, नम्रता, फल, हर प्रकार का। 10:38 प्रेरितों का काम 10:38। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में 38वां का वचन पढ़ेंगे, जोर से आवाज से पढ़ेंगे। 38। परमेश्वर ने इस ऋतु से नीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर நசரனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராகவும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்டு யாவரையும் குணமாக்குறவராகவும் சுற்றி திரிந்தார். कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वे भलाई करता और सबको जो शैतान की सते हुए थे अच्छा करता
फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்பர் 1 பரிசுத்த ஆவி. पहला बात पवित्र आत्मा, இரண்டாவது தேவனுடைய வல்லமை, दूसरा सामर्थ, மூன்றாவது கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தை. வார்த்தை. प्रभु यीशु मसीह का शब्द वचन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒன்று பரிசுத்த ஆவி, पवित्र आत्मा, இரண்டு பிதாவின் வல்லமை, दूसरा परमेश्वर का सामर्थ, மூன்றாவது தேவனுடைய வார்த்தை. तीसरा परमेश्वर का वचन। அந்த வார்த்தை தான் இயேசு. वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। இயேசு வார்த்தையா இருக்கிறாரு. प्रभु यीशु मसीह वचन है। அந்த வார்த்தைக்கு மேலே பிதாவின் வல்லமை இறங்கி वो வருகிறது. वचन के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आता है। அந்த வசனத்தின் மேல் பரிசுத்த ஆவி இறங்கி வராது. वो वचन के ऊपर पवित्र आत्मा भी उतर आता है। இது மூன்று ஒன்றா சேர இடத்துல ये தான் तीनों एक होकर கட்ட ஓக்கர் अ, அது ஒரு அபிஷேகமா மாறுகிறது. इकट्ठा होकर एक अभिषेक के रूप में आता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல மூன்று காரியம் இருக்கிறது. उसमें तीन बात पाया जाता है। என்னென்ன இருக்கு? क्या है? मैंने बताया ना क्या क्या? पिता का शक्ति, सामर्थ, हम्म, पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलने के बाद ये तीनों मिलने से वो अभिषेक बन जाते हैं. वे अभिषेक बन जाता है। अगर एक एक काम कर रहा ना, अगर परिशुद्ध आत्मा वाले काम कर रहा तो बड़े एयरपोर्ट में ऐसा काम किया था. जो अलग अलग रूप में, जैसे पवित्र आत्मा पुराने नियम में अलग से काम किया है, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தின் கீழே அபிஷேகம் என்றால் இப்படி தான் இருக்கும். लेकिन नया नियम के अंदर अभिषेक का मतलब इकट्ठे होकर काम करता है। நீங்க 1 யோவான் 2:27 கூட வாசிக்கலாம். पहला युगना 2:27. 2:27। पहला युगना 2:27। நீங்கள் அவரால் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. அது சத்தியமா இருக்கிறது, பொய் அல்ல. அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக. இந்தியமா படும். परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है तुम में बना रहता है और तुम्हें वो तुम्हें उसका प्रयोजन इस प्रयोजन नहीं की। जी पढ़िए। कोई तुम्हें सिखा परन जैसे वह अभिषेक जो उसके ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। ये सच्चा है वो झूठा नहीं। ஒருவனும் உனக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. और कोई आपको सिखाने के लिए जरूरी नहीं है। அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ये अभिषेक को पाने के लिए நாம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம். हम इंतजार करना जरूरी है। இப்போ நீங்க உட்கார்ந்து படிக்கிறீங்க, हबा यहाँ पर आप बैठे हुए सीख रहे हैं, ஆனா உங்ககிட்ட பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறது. लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है। இப்போ அபிஷேகம் வரணும்னா நீங்க அதிகமா ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். जब आपके अंदर अभिषेक आना है तो आप प्रार्थना करना शुरू करना है। அந்த அபிஷேகம் மேல வந்தா जो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் போய் குணமாக்க जो शैतान से पीड़ित लोगों को குணமாக்க छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, நீங்க அப்படியேப்பட்ட மாறிடுவீங்க. वैसे वो आपको बदल देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிசாசுக்கு வல்லமை இருக்கிறது. शैतान के पास सामर्थ है, அதை உடைக்கணும்னா அபிஷேகம் வேணும். वो उसको तोड़ने के लिए हमारे पास अभिषेक का जरूरत है। அதனால தான் அபிஷேகம் अभिषेक எதையும் தாங்கும். कुछ भी किसी को भी वो அபிஷேகம் எதையும் தாங்கும். अभिषेक किसी को भी संभाल सकता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதையும் செய்யும். कुछ भी कर सकता है। அபிஷேகம் உங்க மேல இருந்தா अभिषेक जो आपके ऊपर होगा तो
உங்க மேல வில்லை எடுத்து உங்க மேல அனுப்பினால நீங்கள் அதையும் தாங்குவீர்கள். ये तीर को आपके ऊपर भी छोड़ने से भी वो आपको सहने के लिए आपके पास सामर्थ होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அபிஷேகம் நம்முடைய ஸ்தேவான் மேல இருந்தது. जो अभिषेक स्तेवान के ऊपर थे, ஆனா அபிஷேகம் அவன் மேல இருந்தபடியினால் जो अभिषेक उसके ऊपर था इसलिए எத்தனையோ கல் அடிக்கிறாங்க. इतने बार उन्होंने पत्थर मारा, ஆனா அவங்களுக்காக அவர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். लेकिन उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। நம்மளை யாரா சீனாவே நம்ம அமைதியா இருக்க முடியாது. जो कोई हमें चिढ़ाता है हम कुछ चुप नहीं रहेंगे, ஏன்னா நமக்கு அபிஷேகம் இல்லை. क्योंकि हमारे अंदर अभिषेक नहीं है। அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு जो अभिषेक को पाने के लिए நம்ம அதுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியது उसके அவசியம். लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியது அவசியம். जो समय निकालना बहुत जरूरी है। அதை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார். जो सहने का अभिषेक परमेश्वर हमें देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் அது உங்களுக்கு புரிகிறது? ये समझ आ गया आपको? समझ गया? समझ அபிஷேகம் தானாவே போதிக்கும். आप अभिषेक अपने आप हमें सिखाता है நீங்க யாரை பற்றி கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. और किसी से जाकर सीखने का कोई जरूरी नहीं, நான் கூட வந்து கற்றுக்கொள்ள கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. हम भी आने का कोई जरूरी नहीं है। அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டா जो अभिषेक आपके अंदर आने के बाद நீங்களே மாஸ்டரா மாறுறீங்க. आप एक मास्टर बन जाएंगे, அல்லேலூயா. टीचर बन जाएंगे। ஆனா அது வருவதற்காக நம்ம காத்திருக்கிறது இல்லை. लेकिन वो आने तक हम इंतजार नहीं करते, அதனால தான் அபிஷேகம் நம்ம மேல விட மாட்டேங்குது. तो इसलिए अभिषेक हमारे ऊपर नहीं आता है। அல்லேலூயா. ஆனா हालेलुया। பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறது. परिशुद्ध पवित्र आत्मा है, அதனால தான் வந்து சபையில உட்கார்ந்து கேட்டுக்கிறீங்க. इसलिए हम यहाँ पर आए बैठ के सुन रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த பரிசுத்தாவே இல்லனா वो पवित्र आत्मा नहीं है तो நீங்களே இந்த நேரத்துல வீட்டுல தூங்கின்னு இருப்பீங்க. अभी हम घर पे सो रहे होते। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் அந்த அபிஷேகத்தை பெறக்கூடாதா? वो अभिषेक आपको चाहिए नहीं चाहिए? அந்த அபிஷேகத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க கூடாதா? वो अभिषेक के लिए आप प्रार्थना करना है कि नहीं? அந்த அபிஷேகத்துக்காக நீங்கள் அதுக்காக பசிதாகமா இருக்கக்கூடாதா? उसके लिए आप भूख प्यास रहना चाहिए कि नहीं? பழைய ஏற்பாட்டின் அபிஷேகம் நான் வேறு சொல்லிட்டேன். ஆனா புதிய ஏற்பாடு வித்தியாசமானது. जो जैसे मैंने बताया पुराना नियम का अभिषेक अलग है, जो नया नियम है जो अभिषेक वो अलग है। அப்போஸ்தலர் மேல அபிஷேகம் இறங்கினது, जो प्रेरितों के ऊपर अभिषेक आया, அவர்கள் முதலாவது தன்னுடைய யார் என்று தன்னை நிரூபித்தார்கள். पहले उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को लोगों के सामने दिखाए कि वो कौन है। அவர்கள் வேறுடைய பாஷை பேச ஆரம்பிச்சிட்டார்கள். वो परमेश्वर का भाषा बोलने लगे। அவர்கள் தன்னுடைய உலக மக்களுடைய பாஷை யாரால் வந்தால் அவங்களுக்கு ஏற்ற பாஷையில பேசினார்கள். जो वहां पर जितने लोग थे उसके अनुसार वो लोग विभिन्न भाषा में बोल रहे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அபிஷேகம் அவர்களை சாட்சியா நிறுத்தினது. वो अभिषेक एक गवाही के रूप में उनको खड़ा किया। அந்த அபிஷேகம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிட்டது. वो आपको बताना चाहते हो वो भी बता देगा. हालेलुया. हालेलुया। अभी स्वर्ग में भी सत्य है, ओरिजिनल बाइबल होता है. ये बाइबल एक दिन जल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल बाइबल कभी नहीं जलेगा. उसका अंदर नित्य बाइबल ओल्ड स्टेट அதாவது பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு சொல்லுங்க. அது सो சரியா? நித்திய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு. नित्य ஏற்பாடு. நித்திய ஏற்பாடு. सो हमेशा के लिए रहने वाला वो एक व्यवस्था है और एटर्नल बुक है। एटर्नल मीनिंग परमानेंट है ना, आनंद एक व्यवस्था है। एटर्नल बाइबल है, ओल्ड टेस्टमेंट है और न्यू टेस्टमेंट है, और पुराना नियम और नया नियम। ओल्ड और एटर्नल बाइबल से थोड़ा से इधर लिखा हुआ बस। जो हमारे वो एटर्नल बुक है बाइबल है, उसमें से कुछ बातों का हमारे लिए लिखा गया है। हालेलुया। बाकी सारा उसका अंदर पड़ा हुआ, बाकी सब उसमें है। और किसका मालूम? वो किसी को मालूम है? ईसा मसीह बोलते हैं पवित्र आत्मा मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा को वो मालूम है। वो बोलते हैं उधर वाला सत्य है, वो ये बिना लिखते हुए बार भी वो सत्य है, और ये सत्य सारा मतलब हाँ हमारे बताएगा. कब बताएगा? हमारे दिल में आने के बाद बताएगा. हालेलुया. अगर अंदर नहीं आते तो कैसा बताएगा?
नहीं बताएगा ஹல்லேலூயா அதனால தான் அங்க இயேசு சொல்ற சகல சத்தியத்துக்குள்ள உங்களை वही सब நடத்துவார். सत्य में आपको ले जाएगा। ஹல்லேலூயா இப்போ வழி चलाएगा। நடத்துவர் மீனிங் क्या जो आपका उस चलाएगा रास्ता- मतलब उस क्या है? रास्ता में ले जाएगा उस मार्ग में कौन हमें सा ले रास्ता जाएगा, में मसीह का रास्ता में ले जाएगा मसीह के रास्ता में ले जाएगा। मसीह का रास्ते में कहाँ से आएगा वो मसीह की- तीनों से निकल कर आता है हालेलुया हालेलुया। हाँ ये इसलिए पवित्र आत्मा अंदर आता है इसलिए हमें पवित्र आत्मा आता है, அது வந்து हमारे அவர் अंदर என்று आता சொல்லப்பட்டிருக்கிறது है। इसलिए वहां पर लिखा है वे அவர் वे என்றால் आएगा। ஆள் தத்துவமுடையவர் वो वे मतलब वो पर्सनालिटी को दिखाता है, व्यक्ति के रूप में उसको दिखाता है। அவர் அவன் அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது वो लड़का वो लड़की वो करके कुछ जानवर का हम दिखाता है, ये सारा एक व्यक्ति के रूप में दिखाता है। அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை அதுன்னு சொன்னா அர்த்தம் கிடையாது हम कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, तो अवन अवल अद मतलब ये ना तो हम कहते हैं इसका क्या बोल वो सकता हूं? लड़का मोबाइल बोलता है लेकिन ये बात नहीं करेगा ऐसे मतलब उसको बोला नहीं पवित्र मसीह ने ऐसे इसके स्वर पर नहीं बोला हमारे जैसे बोला हुआ इंग्लिश में कहता है ही सी इट, थर्ड पर्सन बोलता है। उसके हिंदी में क्या, हिंदी में ऐसे कोई है सबके लिए वह बोलते हैं, जैसे- वो आया सबके लिए वो बोलते जैसे हैं। ये कुर्सी है कुर्सी को हम क्या बोलते हैं कुर्सी बोलते हैं लेकिन कुर्सी बोलते हैं लेकिन कुर्सी का नाम है मालूम नहीं होगा क्या बोलेंगे वो लेकर आओ वो बोलते हैं वो लेकर आओ है ना। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ऐसे नहीं बोला इधर हिंदी में नहीं है। ओके। वो आएगा नहीं बोला पवित्र आत्मा ये इज्जत का आदमी है சொல்லுங்க तो पवित्र आत्मा के लिए एक इज्जत देना पड़ता है और आदर देना पड़ता है। वो पवित्र आत्मा मीनिंग वो मिल्की सिदेक है जो पवित्र आत्मा का मतलब मेल्कीसिदेक, मिल्की सिदेक मीनिंग उसका माँ भी नहीं पिता भी नहीं उसका हिस्ट्री भी नहीं है जो मेल्कीसिदेक के बारे में बाइबल में लिखा है उनके लिए ना पापा मम्मी है, उसके या शुरुआत है, उसका कोई जन्म नहीं है। सबसे पहले मिल्की सिदेक आबरगाम मिल्की सिदेक को 10 भाग दिया जो अब्राहम के समय में मेल्कीसिदेक थे, उसका अब्राहम ने जाके 10वांश भी दिया है। इसलिए मिल्की सिदेक के मुताबिक इसने मगा प्रधान आश्चर्य बना गया इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी मेल्कीसिदेक के तो मुताबिक उन्होंने भी एक महायाजक बन गया हमारे लिए। आरोन को मुताबिक नहीं बना आरोन ने मुताबिक महायाजक नहीं बना, वो मिल्की सिदेक मुறையின்படி प्रधान आश्चर्य बन वो गया मेल्कीसिदेक मेथड में प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए महायाजक अब बना। எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 3 வசனம் வாசித்து பாருங்க हिब्रूस का 7 में 3 वचन में लिखा है, इब्रानियों 7 का 3, इब्रानियों 7 का 3, इब्रानियों 7 का 3। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। தகப்பன் தாயும் வம்சவரல் இல்லாதவன் ना पिता ना माता ना वंशावली है, இவன் நாட்களில் துவக்கம் ஜீவனமும் முடிவும் ஆனவல்ல कोई आदि कोई अंत नहीं है। தேவகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் वो परमेश्वर का पुत्र के समान है, என்றென்றைக்கு ஆசாரியராக நிலைத்திருக்கிறவர் हमेशा के लिए महायाजक रूप में बना रहेगा। அல்லேலூயா हालेलुया। இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இதை குறித்து ஏதாவது आप इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको बात समझ आ रहा है, ஏதாவது புரியுதா உங்களுக்கு कुछ समझ गया? मिल्कीसिदेक के बारे में कुछ मालूम हो रहा है नहीं हो रहा है मिल्कीसिदेक कौन है उसका माँ नहीं उसका पिताजी नहीं उसका हिस्ट्री नहीं वंशावली नहीं, हिस्ट्री नहीं, उसका आरंभ नहीं कोई उसका अंत नहीं, अंत शुरुआत नहीं, अंत नहीं। ठीक है ना हाँ मसीह के लिए उसका माँ भी पिताजी भी
उसका हिस्ट्री भी सब कुछ भी। प्रभु यीशु मसीह को भी माता है, पिता है और उनका वंशावली है, सब कुछ है। लेकिन மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி அவர் ஆசாரியர் ஆகிறாரு. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेल्किसिदेकी के द्वारा उसके तरह वो हमारे लिए महायाजक बन गया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। इसलिए அந்த இடத்துல போட்டிருக்குது அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்தை इसलिए ही वो आएगा, हमें सारे सब सत्य का मार्ग में चलाएगा, ले वो जाएगा। கணத்துக்குரியவர், वो एक आदर के योग्य है, அவருக்கு ஆழ்த்தத்துவம் உடையவர், वो उनके पास एक व्यक्तित्व है। அவர் ரொம்ப இம்மத்துக்குரியவர், सॉरी, ரொம்ப இம்மத்து, அதாவது நல்ல கணத்துக்குரியது போல பெரிய ஒரு அதிகாரி மாதிரி அவர். ओके, उनके पास एक अधिकार भी है। அல்லேலூயா. அவர் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமானவர். वो सबके लिए सब कुछ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் மெல்கிசேதேக்கின் முறைப்படி தான் ஆசாரி ஆகிறார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी मेल्किसिदेक के तरह हमारे लिए महायाजक बन गया। ஆசாரியர் ஆரோனின் முறையின்படி ஆகவில்லை. हारून के अनुसार नहीं, मेल्किसिदेक के अनुसार। அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, மெல்கிசேதேக்னா எவ்வளவு பெரிய இருப்பார். तो इसका मतलब मेल्किसिदेक का कितना बड़े आदर होता होगा। அதை தான் நம்ம அங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது. इस बातों को हम यहाँ पर समझना चाहिए। அப்ப ஆவியானவர் जो पवित्र आत्मा, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஆவியில இருக்கிறான்னு அர்த்தம். जो पवित्र आत्मा का मतलब जो हम सोचते हैं छोटा मोटा चीज़ों के लिए काम करते हैं इसके अंदर है, ये ऐसा नहीं है। அவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடுகிறவர். वो जल के ऊपर मंडल आ रहा थे। அது அப்படின்னா டான்ஸ் ஆடுறவர் இல்லை அவரு. इसका मतलब वो डांस नहीं कर रहा था, नहीं नाच रहा था। சமுத்திரக்கு அதாவது அந்த ஜலத்தின் மேல் அசைவாடுதல் அர்த்தம் அதை பாதுகாக்கிறார். तो जल के ऊपर मंडल आ रहा है मतलब उसके ऊपर उन्होंने एक तरह का सुरक्षा कर रहे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதலை பிசாசு கை வைக்க கூடாது அந்த தண்ணியில. उसके ऊपर शैतान ने आके उसके ऊपर हाथ ना लगाना करके அதனால தான் அவர் பாதுகாக்கிறார். उसको सुरक्षा कर रहे थे। ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பூமி ஒழுங்கின்மையா இருக்கிறது. क्योंकि ये पृथ्वी अडोल थे, பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையாக இருளா இருக்கிறது. वो सुनसान थे, कुछ नहीं थे और उसमें अडोल के रूप अडोल थे। அதனால தான் ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் தன்னை பாதுகாக்கிறார், ஜலத்தை பாதுகாக்கிறார். इसलिए पवित्र आत्मा जल को सुरक्षा कर रहे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நம்மளை பாதுகாக்கிறோம் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர். इसलिए आज हमें सुरक्षा करने वाला वो पवित्र आत्मा है। அதனால தான் ஆவியானவர் என்றவர் ஆள் தத்துவம் உடையவரா இருக்கிறாரு. इसलिए पवित्र आत्मा का मतलब उसके अंदर एक व्यक्तित्व है। அதனால தான் ஆவியான சமூகமாக வல்லமையாக பாதுகாப்பா இருக்கிறார். इसलिए पवित्र आत्मा एक उपस्थिति के रूप में, सामर्थ के रूप में हमारे अंदर है। வல்லமை அதாவது சமூகம், उपस्थिति, வல்லமை, सामर्थ, அவருடைய பாதுகாப்பு, उनका सुरक्षा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆவியானுடைய ஆத்மா தான் சமூகம். सॉरी, சமூகம் ஆவியானுடைய ஆத்மா. पवित्र आत्मा का प्राण मतलब क्या है? वो उपस्थिति है। ஆவிதான் வல்லமை. जो उनका आत्मा सामर्थ को दिखाता है। அவருடைய சரீரம் பாதுகாப்பு. उनका शरीर मतलब एक सुरक्षा को दिखाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி ஒரு மனுஷனுடைய வியாதி வருகிறது, एक मनुष्य को मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार हो गया, அவர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாரு, वो अस्पताल गया, இங்க நம்ம ஜெபம் பண்றோம், यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, அந்த நம்ம ஜெபம் हमारा प्रार्थना அந்த மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது. वो व्यक्ति को सुरक्षा करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி கொடுக்குறாரு? कैसे वो देता है? நீங்க ஜெபம் பண்ணுகிற, हम प्रार्थना करते, ஹாஸ்பிட்டல் அவர் இருக்கிறாரு, अस्पताल में वो है, பயங்கரமான வியாதி, बहुत कठिन गंभीर बीमारी है, ஆனா இங்க ஜெபம் பண்ணும்போது ஆவியான அந்த வேலையை செய்து முடிச்சதார். लेकिन हम यहाँ पर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा वहाँ पर वो काम कर देता है। அவர் சரீரம் அங்க வெளிப்படுகிறது. उनका शरीर वहाँ पर आता है, அல்லேலூயா. शरीर के रूप में वहाँ पर இங்க दिखाता நம்ம है। ஜெபிக்கிறோம், அங்க விடுதலை அவர் தான் கொடுக்கணும். जो यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा उनको छुड़ाता है। அதனால தான் ஆவியானவருக்கு பேர் இருக்குது தேற்றவாளன். इसलिए पवित्र आत्मा का एक नाम है
सहारा, हालेलुया। सहायक, सहायक। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவர் வல்லமை உடையவர். वो उनके पास सामर्थ है। வல்லமை என்றால் என்ன? सामर्थ का मतलब, வல்லமைனா என்ன? सामर्थ का मतलब ம்? வல்லமை. அவர்கிட்ட வல்லமை இருக்கிறது. उनके पास सामर्थ है। அந்த வல்லமை எப்படி வெளிப்படுகிறது? वो सामर्थ कैसे प्रकट होता है? யாராவது இங்க சொல்லலாம். அந்த வல்லமை. वो सामर्थ कैसे ஒரு प्रकट? முடவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். एक लंगड़े बेटा है, அவர் 40 வருஷம் உட்கார்ந்துக்கிறாரு. Sorry? 40 வருஷமா. 40 साल से वो लंगड़े बन के बेटा है। ஆனா பேதுரு அவன்கிட்ட அவன் கொடுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. जो यूहन्ना और पतरस और याकूब के पास, यूहन्ना के पास कुछ नहीं था उनको देने के लिए, ஆனா ஒண்ணு மட்டும் இருக்கிறது. लेकिन एक चीज है उनके पास। இயேசு நாமத்தில் எழுந்து நடன்றாரு. उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ। அப்ப இயேசு நாமத்தை சொல்லும்போது जब यीशु मसीह के नाम बोलने से ஆவியானுடைய வல்லமை அவனுக்குள்ள இறங்குது. जो उनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, ஏன்னா அது வியாதி இல்ல, वो बीमार नहीं है, அது எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதி. वो हड्डियों के संबंध हड्डियों के संबंध में एक बीमारी है। எப்படி ஆதாமுடைய இலாவேலம் எடுக்கும்போது जैसे आदम की ये अभी तो शब्द आया भूल गया मैंने, ये जैसे एक हड्डी निकाला था, बसी का निकाला था, அந்த அந்த எலும்புக்குள்ள वल्लम இருக்கிறது. वो हड्डी में सामर्थ है, அதனால தான் ஒரு மனைவியை உண்டாக்கிட்டாரு. इसलिए वो एक पत्नी को बनाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ ஒரு எலும்பிலே வல்லம் இருக்கும்போது एक हड्डी में सामर्थ है तो இந்த பையனுக்கு 40 வயசு எலும்பே வேலை செய்யல. ये लड़का को 40 साल से जो हड्डी काम नहीं कर रहा है। ஆனா அந்த எலும்பு எப்படி இருக்கு? वो हड्डी कैसे है? குச்சி மாதிரி இருக்குது. एक लकड़ी जैसे है, அதுல எப்படி வல்லமை போன பிறகு எலும்பு வளர்கிறது. लेकिन जो उसका अंदर जब सामर्थ आता है वो हड्डी बढ़ना शुरू हो जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த மாதிரி இயேசுவின் அங்கே பேதுரு யோவான் அந்த இயேசுவின் நாமத்தில் எழுந்து நட சொல்லும்போது அந்த ஆவியின் வல்லமை அங்கே இறங்கின பிறகு அவங்க அதை நடக்க வச்சான். जब पतरस यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ, जब वो हड्डी के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, वो बढ़ने लगे, वो उठ के खड़े हो गया, அவர் துதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. वो स्तुति करना शुरू कर இது दिया। எப்படி ஆகும்? ये कैसे हुआ? இயேசு மேலே போயிட்டாரு, यीशु मसीह ऊपर गया, ऊपर चला गया, இவங்க கிட்ட இயேசு இல்லை, इनके पास यीशु मसीह नहीं है, ஆனா இயேசுவோட நாமம் இருக்குது. यीशु मसीह का नाम है। அந்த நாமத்தோட வல்லமை ஆவியான இறங்கி வந்தது தான் அந்த வேலை நடந்தது. ஆவியான இறங்கி வந்தது தான் அந்த வேலை நடந்தது. जो वो नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक सारी सामर्थ आया, इसलिए वो गया है। ஆவியானவர் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறார். जो पवित्र आत्मा काम को करके खत्म कर देते हैं, அவர் வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறார். वो अपना सामर्थ को प्रकट करता है। இந்த இடத்துல நான் பார்க்கிறோம் यहाँ पर ये देखते हैं அவருடைய சமூகம் எப்படி வருகிறது. उनका उपस्थिति कैसे आता है। நம்ம இங்க கூடி ஜெபம் பண்ணும்போது जब हम यहाँ पर इकट्ठे होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, நம்ம மேல தன்னுடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறாரு. हमारे ऊपर अपना अभिषेक उंडेलता है, அவருடைய சமூகத்தை நமக்குள்ள ஊற்றுகிறாரு. उनका उपस्थिति को भी हमारे ऊपर उंडेलता அவருடைய है, ஆத்மா நமக்குள்ள வந்து இறங்குகிறது. उनकी आत्मा हमारे अंदर आता है, அவரே நமக்குள்ள வந்து வாசம் பண்றாரு. वो अपने आप हमारे अंदर आकर वास करता है, அல்லேலூயா. हमारे अंदर आके वास करता அதனால है। தான் ஆவியானவர் ஆவி ஆத்மா சரீரமாக வேலை செய்கிறார். इसलिए पवित्र आत्मा और प्राण आत्मा शरीर के रूप में काम करता है। எசேக்கியேல் புத்தகத்துல ஒரு வசனம் இருக்குது. इज़ेकिएल में एक वचन है, அவர் என்ன செய்தார் என்றால் उन्होंने क्या किया है, ஒரு மனுஷனை தலைமுடியை பிடிச்சு தூக்கிட்டு போறாரு एक ஆவியானவர். मनुष्य को, इज़ेकिएल को उनका बाल पकड़कर उठा के ले जा रहा है। அப்ப ஆவியானவர் என்ன இருக்கு? 8 का 3 அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். इज़ेकिएल எசேக்கியேல்ல 8 का 3 இல்ல 8 இல்ல हाँ, அடுத்த வசனம் நினைக்கிறேன். अभी निकाल रहा उसका. उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर जी पढ़िए, मेरे सिर के बाल पकड़े, वही आया मुझे पृथ्वी और आकाश में அதுல இருக்குல்ல. इज़ेकिएल। हाँ, परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया அல்லேலூயா. हालेलुया। बस उत्तर की ओर है, और जिसने
जी बस बस एक கையை चाहिए। தூக்கிட்டு போறாரு இல்லைங்களா? उन्हें हाथ पकड़ के ले जा, हाथ से है ना बढ़ा कर लेके गया ना जी। அது எப்படி முடியும்? वे कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, முடியுமா முடியாதா? हो सकता कि नहीं? முடியுமா முடியாதுன்னு கேட்குறேன், கேளுங்க. ஆவியானவர் ஒருத்தர் தூக்கின்னு போக முடியுமா முடியாதான்னு கேட்குறேன். जैसे पवित्र आत्मा किसी को उठा के जा सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं? हमारा बाल पकड़ के उठा के जा सकता है कि नहीं? हाँ? ஆட்டுக்கு தீன்को पढ़ो अच्छी तरह। एक और बार पढ़िए। उसके हाथ हम्म। सांप कुछ बढ़ाकर हम्म, मेरे सिर के बाल पकड़े। पकड़े कौन पकड़ा था? उसने। हाँ? नहीं, हाथ को पकड़ा। कौन पकड़ा? उस कौन सा हाथ वो? किसका हाथ है? उसमें लिखा है उसका, उसका लिखा है, उसने, उसने लिखा है। उसने हाथ सा हाथ सांप कुछ लिखा है, ब- हाथ सा कुछ बढ़ाकर हम्म मेरे सिर के बाल पकड़े। हम्म तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के सिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के ऊपर फाटक के पास पहुंचा दिया। इधर आत्मा लिखा, वो कौन है वो? यहाँ पर आत्मा लिखा है, वो कौन है? वे कौन है? वो था पवित्र आत्मा वो। ठीक वो है ना? पवित्र आत्मा है, इधर आत्मा ऐसे लिखा हुआ, लेकिन अब पवित्र आत्मा, वो पवित्र पवित्र आत्मा है। आत्मा को हाथ होता है, वो हाथ से एक आदमी पकड़ के खींच के उठा ले जाते हैं। जो पवित्र आत्मा के पास हाथ बनकर हाथ के ऐसे जैसे कई का- वचन उठाकर अंदर चल- पड़ा हुआ। ऐसे कई वचन है, अगर आप कई मास्टर सारे ऑफ डिग्री लेना तो जो मास्टर डिग्री में लेना आप- चाहिए तो पवित्र आत्मा का आत्मा और प्राण और शरीर को अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग पढ़ना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। जो मास्टर डिग्री लेना है, MTH लेना है, तो पवित्र आत्मा का ये तीनों चीज़ को हम वचन से अलग अलग करना है। जहाँ पर उनके आत्मा काम करता है, जहाँ उनका शरीर काम कर रहा है, शरीर के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पर उनका आत्मा काम कर रहा இதை है। நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா इसको आपने सीख लिया, ஒரு வியாதிசையில எப்படி குணமாக்கணும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும்। एक बीमारी व्यक्ति को कैसे चंगा करना है हमको मालूम हो ஒரு जाएगा। பிசாசு அதனுடைய அதனுடைய டைரக்ஷன் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம்। एक शैतान का एक दिशा को आप पहचान सकते हो। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஒரு வீட்டுக்குள்ள வைத்திருக்க செய்வினையை கண்டுபிடிச்சிடலாம்। एक घर के अंदर जो जादू टोना रखा है तो उसको आप पहचान सकते हो। அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போதே உனக்கு ஆவியான உணர்த்துவா। जो घर के अंदर आप प्रवेश करते हुए पवित्र आत्मा को बता दे, ஏன்னா அவருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்போஸ்தலர்ல இருந்து வெளிப்படுத்தி எழுதப்பட்டிருக்கிறது। क्योंकि उनका जो प्राण आत्मा शरीर को पहचानने के बारे में प्रेरितों का काम से लेकर வெளிப்படுத்துறாங்க। जो प्रकाशित वाक्य तक सारे वचनों में इस प्रकार का काम पाया जाता है। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஏன்னா ஆவியானவர் எங்கே இறங்குறார் என்றால் முதலாவது அப்போஸ்தலர் இறங்குறாரு, जहाँ வெளிப்படுத்துறவர் पर सबसे பேசுறார்। पहले पवित्र आत्मा उतर आता है तो प्रेरितों का काम में उतर आता है। இப்போ நம்ம ஆவியானவர் நமக்குள்ள இறங்கி வருகிறார்। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर आता है। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஒரு நாள் வரும் एक दिन आएगा ஆவியானவருக்குள்ள நம்ம போயிடுவோம்। पवित्र आत्मा के अंदर हम चले जाएंगे, ஆவியானவரே ஆத்மா நம்மளை நம்ம கொண்டு போவாரு। वो हमें आत्मा में हमें ले जाएगा। அப்படிதான் யோவானை கொண்டு போனார் ஆண்டவர்। वैसे வெளிப்படுத்தல यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को वैसे परमेश्वर ने ले गया है, उठा के गया। அது மாதிரி நிறைய वचனம் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது। ऐसे कई वचनों को वहां पर लिखा गया है। அங்க என்ன பண்ண ஆவிக்குள் ஆனேன் ஆவிக்குள் ஆனேன் ஆவிக்குள் நான் मैं எழுத आत्मा में हुआ करके वहां पर कई सारा जगह में लिखा அதை है। நம்ம கண்டுபிடிச்சாத இப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும்। जैसे इस बातों को हम परखना सीख लेंगे, उस बातों को हम समझ सकते हैं। அவருக்கு வல்ல ஆவி இருக்கிறது, उनमें आत्मा है, அவருக்கு ஆத்மா இருக்கிறது, प्राण है, அவருக்கு சரீரம் இருக்கிறது। उनके शरीर है। எப்படி இயேசுக்கு இருக்கிறது ஆவி ஆத்மா சரீரம், जैसे प्रभु यीशु मसीह में प्राण शरीर आत्मा था, இருக்குதா இல்லைங்களா?
प्रभु यीशु मसीह में प्राण शरीर आत्मा था कि नहीं? பிதாவுக்குள்ள இருக்குதா இல்லையா? पिता में है कि नहीं? அது PhD பண்ணும்போது வரும். वो डॉक्टरेट करेंगे, PhD करेंगे, तब उसके बारे में सीखेंगे. பழைய ஏற்பாட்டில் பிதாவுக்கு ஆவி இருக்கிறது, ஆத்மாவுக்கு சரீரம் இருக்கிறது. शरीर को सो पिता को भी शरीर प्राण आत्मा है. நமக்கு இருக்குதா? हमें है 3 चीज, शरीर प्राण आत्मा. அப்ப பிதா உண்டாக்குறான்னு அவருக்கு இருக்குமா இருக்காதா? जो जिसने हमें बनाया उनके पास होगा नहीं होगा? அவருடைய சாயல தான் நம்ம உண்டாக்குறாரு. उन्होंने उनके रूप में तो हमें बनाया. அதனால தான் நமக்குள்ள வந்து इसलिए இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். तो इसलिए इसको फर्क नाम का बहुत जरूरी पड़ता है. BTHமே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பிரிக்கிறோம். जो अभी बैचलर डिग्री BTH हम कर रहे हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह का शरीर प्राण आत्मा को हम अलग करते हैं. அதே மாதிரி MTHல ஆவியானுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பிரிக்கிறோம். वैसे MTH में मास्टर डिग्री में पवित्र आत्मा का तीनों चीज को हम अलग करते हैं, शरीर प्राण आत्मा को. பழைய ஏற்பாட்டில் பிதாவுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பிரிக்கிறோம். नया नियम में पिता का शरीर प्राण आत्मा को हम अलग करते இப்போ हैं. பிசாசுக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருக்குதா இல்லையா? अभी शैतान को प्राण शरीर आत्मा है कि नहीं? अभी उसको भी होना चाहिए. அது இருக்குதா நீ பார்த்திருக்கிறீங்களா? कभी हमने देखा? आपने? नहीं, சங்கீதம் 1:1 இருக்கு. वचन संहिता 1 में है. एक में लिखा हुआ वचन संहिता 1:1 में துன்மார்க்கன் दुष्ट, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? அதுதான் அந்தி கிறிஸ்து, वे ஆன்டி एंटीक्रिस्ट है. பாவின்னு சொல்லும் போது पापी कहने से அது வலு சர்பத்தை குறிக்கிறது. वो सांप को दिखाता है. उसको क्या बोलते हैं? सांप कहते हैं ना. ओके. அதாவது விக்கிர ஆராதனை. हाँ, அதெல்லாம் செய்தாங்க. जो मूर्ति पूजा जो कराता है वो है அல்லேலூயா. सांप को दिखाता பரியாசக்காரன் है. उसमें टटली करने वाला लिखा है, அதுதான் வந்து கள்ள தீர்க்கதரிசி. वो है झूठी भविष्यवक्ता. அல்லேலூயா. அதனால தான் ஆண்டவர் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் சிட்டிங் அண்ட் வாக்கிங். इसलिए उनका बैठना, चलना, இல்ல நிக்க கூடாது. ஸ்டாண்டிங் வாக்கிங் खड़ा ना हो, खड़े होना, बैठना, चलना, ये तीनों नहीं करना. तीनों नहीं करना. ஏன்னா அந்த ஆவிகள் அதுக்குள்ள இருக்கிறது. क्योंकि इस प्रकार की आत्मा उसके अंदर है. ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்படலைன்னா இந்த ஆவி அவங்களுக்குள்ள இருக்கும். एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता है तो इस प्रकार की आत्मा उसके अंदर जरूर होगा. அவர்கிட்ட நீ உட்கார்ந்தா அந்த ஆவி உடனே அது உள்ள வருது. जो आत्मा हमें भी हमारे अंदर भी आ सकता है. शुद्ध बनने के लिए काफी टाइम लगती है. फिर उसके बाद हमें शुद्ध करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. आना पाप बनने के लिए एक ही दिन काफी है. पाप करने के लिए 1 सेकंड काफी है. अच्छा बनने के लिए कई दिन लगती है. अच्छे बनने के लिए कई दिन लगता है, कई समय साल बुरा लगता है. बनने के लिए दिन भी नहीं लगती है. बुरा बनने के लिए तो हमें कोई समय जरूरी नहीं அல்லேலூயா. है ना. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருக்கிறது. हर चीज के लिए शरीर प्राण आत्मा है. அது தெரிஞ்சாதான் उसके बारे में हम पहचानेंगे, நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். अगले स्टेप में हम जा सकते हैं. அப்பதான் எந்த வசனத்தை வாசித்தாலும் जब कोई भी वचन का पढ़े, உங்களுக்கு வந்து இது யாரை குறித்து எழுதிக்குதுன்னு டக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். जिसके बारे में किसके बारे में लिखा है हम एकदम पहचान लेंगे. ஏன்னா இந்த வேதத்திலே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है. புதிய ஏற்பாட்டில் பிசாசுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும். नया नियम में शैतान का प्राण शरीर आत्मा के बारे में लिखा गया है. முழு பைபிள்ல पूरा बाइबल में மனுஷனுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழு பைபிள் எழுதிக்குது. मनुष्य के बारे में, मनुष्य का शरीर प्राण आत्मा के बारे में पूरा बाइबल में भी लिखा அது है. எங்க எழுதியிருக்கு? वहाँ कहाँ लिखा है? ஒவ்வொரு வசனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்குது. एक एक वचन के अंदर भी है. அதனால தான் வசனத்தை ढूंढो, जो वचन को खोजो, தேடி தியானி ஆராய். सॉरी, தேடி வாசி தியானி ஆராய்ந்து வாசி. वचन को जांच लो, खोज लो, मनन करो, ध्यान அல்லேலூயா. करो. அதனால தான் இயேசு சொல்லிட்டு போனார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा தேடுதல் சரீரத்துல, जो सांचना शरीर में है, ஆராய்ந்து பார்க்கறது ஆவியில, जो खोजना आत्मा में, தியானிக்கிறது இருதயத்துல. जो मनन करना हृदय में, அல்லேலூயா. आवी में.
இப்படி பிரிச்சாதான் உங்களால முடியும். ऐसे हम अलग करेंगे कई सारे बातों को हम पता कर सकते हैं। பிடிஹெச் சப்ஜெக்ட் கொடுக்கும்போது जब BTH डॉक्टरेट हम करेंगे நம்முடைய மனசு கொஞ்சம் கரெக்டா செட்டிங்ல இருந்தது, तो हमारे मन செட்டிங்ல இருந்தது. करेक्टान एक ठीक सेटिंग में था। ஆனா எம்டிஹெச் ஸ்திதி கொஞ்சம் में। டிகிரி வரும்போது, ஒரு டிகிரி ஏறும்போது, एक चलो டிகிரி மேலே வரும்போது எம்டிஹெச் சொல்லுவது கொஞ்சம் புரிவது கடினம். तो जब हम MTH में पढ़ने के लिए एक स्टेप हम आते समय जो हम सिखा रहे हैं बता रहे हैं उसका समझना बहुत कठिन हो जाता है, ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த சமூகம் வல்லமை பாதகம் இதுவரை கேட்டதே இல்லை. क्योंकि इस प्रकार की बातों का अभी तक हमने कभी सुना ही नहीं। பவித்திர ஆத்மாக்கு ஆவி ஆத்மா இருக்குதான்னு யாருக்கும் தெரியாது. पवित्र आत्मा के लिए शरीर प्राण आत्मा है करके किसी को भी मालूम नहीं था, அதனால தான் நமக்கு அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். इसलिए इस प्रकार का जब क्लास आता है हमारे लिए जल्दी नींद लग जाती அதனால है, தான் உங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குது. इसलिए हम ये लिस्ट बना के आया है। அதுல மேல ஆசன் வந்து கர்மி. ஆத்மா குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது, इसलिए आत्मा के बारे में ஆவி சரீரத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये तमिल में बहुत बड़ा खड़बुड़ है, जो वहां पर आत्मा बोलते हैं यहाँ पर प्राण बोलना पड़ता है। कोई तो बात नहीं, इसलिए- हमने तो पवित्र आत्मा का उपस्थिति मतलब पवित्र आत्मा का प्राण, जैसा और आपने पवित्र आत्मा का आत्मा मतलब आप- स्पिरिट மில்க் और शरीर। பாலை दूध, நீ தூதுன்னு சொல்றீங்க, நான் பாலுன்னு சொல்றேன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். आप कहते हैं दूध, हम कहते हैं பால். पाल। पाल मत तमिल में दूध का दूध का तमिल शब्द पाल, हम पाल कहते हैं ना, वो पाल को हम दूध कहते हैं। तो तमिल में पाल मतलब दूध है, ठीक है, दूध, तो हम दूध कहते இங்க हैं। ஆத்மா பிரான் பிரான் ஆத்மா बन जाता है. जब वही बात. हिंदी में आत्मा कहते हैं वहाँ पर वो प्राण है। नहीं। ये ऐसे आ गया, मालूम है आपको ये क्यों ऐसे लिखा हुआ? जो बैठने वाला ना, वो बैठने वाला हिंदी लिखने वाला तमिल मालूम नहीं है, तमिल लिखने वाला हिंदी मालूम नहीं, दोनों इकट्ठा बैठा हुआ. ठीक है, अपना अपने लिखो पढ़ना तो उन लोग. बाइबल लिखना आदमी लिखा था ना, पवित्र आत्मा ने पहले लिख दिया. क्या लिखा था पहले पवित्र आत्मा? ஆவியானவர் என்ன எழுதினாரு முதல்ல? जो पवित्र பழைய आत्मा ஏற்பாட்டை सबसे எப்படி पहले எழுதினாரு? பழைய ஏற்பாடு. पुराने नियम के कैसे पवित्र आत्मा में लिखवाया, அது பேர் என்ன சொன்னார்? அந்த புத்தகத்தை பேரு वो पुस्तक का नाम क्या है? நியாயப்பிரமாண புத்தகம். व्यवस्था विवरण। அதுக்கு என்ன சொன்னார் ஆண்டவர்? उसके लिए परमेश्वर ने क्या बताया? मालूम है? பழைய ஏற்பாடு कौन सा மொழி में எழுதப்பட்டிருக்கு? जो पुराना नियम कौन सा भाषा में लिखा गया है? எபிரேய भाषा में. हिब्रानी भाषा में लिखा गया। न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा हुआ. जो नया नियम है युगानी भाषा में लिखा गया है ना, ग्रीक। பழைய ஏற்பாடு 5 புத்தகங்களை தேவனே எழுதி கொடுத்தார். जो पुराना नियम का पहले 5 किताब को परमेश्वर ने खुद ही लिख के दिया है, அது மனுஷன் எழுதல, वो मनुष्य ने नहीं लिखा, தேவனே அது எழுதி கொடுத்தார். परमेश्वर ने खुद ही लिख के गया दिया। அதனால தான் வந்து இந்த பழைய ஏற்பாட்டை யார் வாசித்தாலும் உட்கார்ந்தெல்லாம் வாசிக்க மாட்டாங்க. इसलिए जो पुराना नियम को कोई भी पढ़ता है बैठ के नहीं पढ़ता। பழைய ஏற்பாட்டில் நீ வாசித்தது எல்லாம் எழுந்து நிற்பார்கள். जो पुराने नियम को सॉरी எழுந்து நின்னுப்பார்கள், எல்லாம் எழுந்து நிற்பார்கள். जो जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब वो लोग खड़े होकर पढ़ते हैं, ஆசாரிகள் எழுந்து நிற்பார், जो याजक खड़े होकर पढ़ते हैं, லேவியர்கள் எழுந்து நிற்பார்கள். जो लेवी भी खड़े होकर पढ़ते हैं। இந்த புத்தகத்தை வாசிப்பதற்கு ये किताब को पढ़ने के लिए 3 மணி நேரம் நிற்பார்கள். 3 घंटे वो लोग खड़े होते हैं। அப்படி நான் சொல்ல அபிபி ऐसा- பழைய ஏற்பாட்டு जो ऑर्थोडॉक्स जूइस अभी भी करते हैं। 3 घंटा खड़े होते हैं. नेगेमिया 9 को 3 को पढ़ के देखो. नेहमिया 9 का 3 में ये लिखा है, वो लोग 3 घंटे खड़े होकर व्यवस्था विवरण को उन्होंने पढ़ रहे थे। पढ़ो. नेहमिया 9 का 3। 9 का 3 नेगेमिया. तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर
हाँ अपन अपना स्थान पर खड़े हुआ, खड़े होकर खड़े होकर दिन के एक पहर तक हम्म, अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हाँ कितना घंटा खड़े होकर पढ़ते हैं? 3 घंटा। 3 घंटे। एक जामुन 3 घंटा बनती है, सॉरी, एक ஒரு ஜாமும் 3 மணி நேரம், हाँ, एक पैर मतलब 3 घंटे है। ठीक है ना। और उसका बाद उसने क्या किया, தன்னுடைய பாவத்தை அவர்கள் சுத்திகரிக்கிறதுக்கு 3 மணி நேரம்। तो उसके बाद एक बहर खड़े होकर 3 घंटे लगभग खड़े होकर अपने पापों को शुद्ध किया। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஏன்னா அவ்வளோ இज्जत இருந்தது, उसका इतना आदर इसमें था, அந்த மாதிரி ஆவியானவர் நடத்தினார்। वैसे पवित्र आत्मा उनको चलाया। அல்லேலூயா। हालेलुया। இப்போ நம்ம பைபிள் வாசிக்கிறோம், எல்லாம் உட்காந்துருக்கிறோம், ஒரு சங்கீதத்தை வாசித்து 10 நிமிஷம் தான், जब हम भजन संगीत का हम पढ़ते हैं 10 मिनट, 10 நிமிஷத்துல வாசித்தரோம்। 10 मिनट में हम खत्म कर देते हैं पढ़कर। ஆனால் அவங்க 5 புத்தகத்தை 3 மணி நேரம் வாசிக்கிறாங்க। वो 5 किताब को भी वो 3 घंटे पढ़ते हैं। புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம ஒரு அதிகாரம் வாசித்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது। जो नया नियम है एक अध्याय को पढ़ने के लिए हमको बहुत कष्ट लगता है, ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆவியானவர் தான் நடத்துறாரு, लेकिन पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा ने चलाया, புதிய ஏற்பாட்டில் ஆவியானவர் தான் நடத்துறாரு। नया नियम में भी पवित्र आत्मा ने चलाया। அல்லேலூயா। हालेलुया। அப்போ ஆவியானவருக்கு 3 விதமான காரியங்களை சொன்னேன் நான்। जो पवित्र आत्मा के बारे में 3 चीजों का आपको मैंने बताया। அவருடைய ஆவி வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறது, उनकी आत्मा सामर्थ को दिखाता है, அவருடைய ஆத்மா சமூகத்தை उनका வெளிப்படுத்துகிறது, प्राण उनका उपस्थिति को दर्शाता है, அவருடைய சரீரம் பாதுகாப்பை வெளிப்படுத்துகிறது। उनका शरीर सुरक्षा को दिखाता है। இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா? सुरक्षा का मतलब ये है कि जो केवल सुरक्षा नहीं है, जो भी क्रिया हम आंखों से देख सकते हैं, चंगाई और छुटकारा, शरीर में जो भी काम है वो पूरा आवियानवर कर देता है। उसका हम शॉर्ट में कहते हैं सुरक्षा, है ना। सामर्थ, उपस्थिति, सुरक्षा मतलब जैसे आपने रोड में जा रहे हैं, ये गाड़ी आगे आ रहा है, आपको टकराना वाला, लेकिन उससे पहले आपको उठा के लेके चले जाएगा, उतना काम करता वो। जैसे दिन में एक दीदी गवाही दे रही थी, पीछे उनके धक्का हुए लेट गया, तो यदि मैं कैसे परमेश्वर बचाता करके वो बता रहे थे कि हमारा- बस में टकराने वाले थे, बस के व्हील के नीचे चले गया, लगता कि 2 आदमी आके खींचा, बाहर छोड़ा, मुड़ के देख रही पता नहीं कहाँ है। ये सुरक्षा, इसका मतलब पवित्र आत्मा शरीर को இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிறவர் ஆவியானவர்। शरीर को सुरक्षा करने वाला पवित्र आत्मा है, उसमें जो भी काम होगा, இந்த ஆத்மாவை பாதுகாத்து நடத்துகிறவர் ஆவியானவர்। ये हमारा प्राण को सुरक्षा कर कर हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा है, அவர் ஆத்மாவை பாதுகாக்க சமூகத்தை ஊற்றுகிறார்। जो हमारे प्राण को बचाने के लिए अपना उपस्थिति को भी उंडेलता है, நம்முடைய ஆவியை பாதுகாக்க அவர் தன் வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறார்। जो हमारे आत्मा को बचाने के लिए उनका सामर्थ्य को वो देता है। இந்த வல்லமை कैसे வெளிப்படுத்துதுன்னா, वो सामर्थ्य को कैसे दिखाता है, प्रकट करता है। तो எலிசா பிரார்த்தனை कर रहा है, एलिसा प्रार्थना कर रहा है, எலிசாவை சுற்றி एलिसा के चारों तरफ எதிரிகள் வந்து விட்டாங்க, जो विरोधी लोग आ गए, ஆனால் அவர்கள் கண் மயக்கத்தை உண்டாக்குகிறார்। लेकिन एलिया ने उनको प्रार्थना किया, उनके आंख को बंद हो गए। அது பேர் வல்லமைன்னு சொல்றது। उसको सामर्थ हम कह सकते हैं, कहते हैं। நாகாமான் வருகிறார், नामान आया, 7 முறை தண்ணியில முழுகன்றாரு, 7 बार वो योर्दान की पानी में डुबकी लगा रहे, அது பாதுகாப்பை குறிக்கிறது। वो सुरक्षा, जो डुबकी लगा रहे वो सुरक्षा मतलब शरीर के काम को दिखाता है। அது ஆவியை நாங்க ஹீலிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாரு। वहां पर पवित्र आत्मा चंगा कर दिया। இது புரியுதா? ஏதாவது ஆகாரு தண்ணீர் கேட்கிறாங்க, आहार पानी मांगा, அங்கே ஆண்டவர் வல்லமை வெளிப்படுத்துறாரு। वहां पर पवित्र परमेश्वर सामर्थ को प्रकट करता எங்கே है। குழந்தை இருக்கிறதோ அங்கே அந்த குழந்தை இடத்துல தண்ணி வருகிறது வெளியே। जो जहां पर वो बच्चा है वहां पर पानी आ रहा है। மோசேயுடைய கையில கோல் இருக்கிறது, मूसा का हाथों में लाठी है, கோல் को समुद्र पर मार रहा है।
सो समुद्र लाठी से समुद्र को मारा। पवित्र आत्मा अपना हवा को अंदर डाल रहा है समुद्र के जब अंदर। पवित्र आत्मा अपना हवा के समुद्र के अंदर डाल रहे हैं। समुद्र दोवा मतलब बीच में रास्ता बन जाता है। वो कैसे बन सकता है? पवित्र आत्मा की इतना ताकत होती है। हालेलुया। समुद्र का दो मतलब 7 अடி தூக்கி மேலே வைக்க முடியும்। सो परमेश्वर ने समुद्र को 7 फुट ऊपर उठा के रख सकते हैं। ஆவியானவருக்கு வல்லமை இருக்கிறது। उतना सामर्थ पवित्र आत्मा के पास है। நம்ம நினைக்கிற ஆவியானவர் ஏதோ வந்து நம்மகிட்ட அப்படி சின்ன சின்ன வேலை செய்கிறார், அப்படி இல்லை। जो हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का हमारे पास आके छोटा मोटा काम करते रहते हैं, அதெல்லாம் கிடையாது। ऐसा नहीं அவருடைய है। அவருடைய வேலை பெரியது। उनका काम बड़े बड़े काम है। இயேசுவை வைத்து சூரியன் நிக்க வைக்கிறாரு। यीशुआ प्रार्थना किया, सूरज को एक जगह में रुकवा அது दिया। அது பவித்திர ஆத்மாவுடைய வல்லமை। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। அந்த மாதிரி வேலை செய்யறதுலாம் டிசைன் பண்றதுலாம் ஆவியானவர் தான்। ये सारा काम करने वाला पवित्र आत्मा है। நம்ம இயேசுவை பார்த்தோமா இல்லையோ? यीशु मसीह के यीशु आत्मा। यीशु हाँ? இயேசுவை பார்த்தோமா இல்லையோ? प्रभु यीशु मसीह को हम देखा नहीं, ஆனால் ஆவியானவர் ஆதியாகமம் 1 பார்க்கிறோம்। लेकिन पवित्र आत्मा को उत्पत्ति पहला अध्याय में पहला वचन में भी हमने देख रहे हैं। அல்லேலூயா। हालेलुया। அங்கே ஆவியானவரை பார்த்தோம், ஆனா யாரும் இயேசுவை பார்க்கல, பிதாவை பார்க்கல। लेकिन वहां पर आप पवित्र आत्मा को हमने देखा, पिता पुत्र को हमने वहां नहीं देखा। யாராவது பார்த்துக்கிறீங்களா? उत्पत्ति का पहला अध्याय में पहला वचन में पवित्र आत्मा இல்ல के बारे இதுவரைக்கும் இயேசுவை யாரா பார்த்துக்கிறீங்களா? இதுவரைக்கும் இயேசுவை யாராவது பார்த்தீங்களா? अभी तक कोई प्रभु यीशु मसीह को देखा? யாரா பார்த்தீங்களா? பிதாவை யாரா பார்த்துக்கிறீங்களா? पिता परमेश्वर को किसी ने देखा? ஆனா ஆவியானவர் பார்த்துருக்கிறோம்। लेकिन पवित्र आत्मा को हमने देखा है। எத்தனை பேர் ஆவியானவர் பார்த்தீங்க? कितने लोग पवित्र आत्मा को देखा है? அவங்களோட கரங்களை உயர்த்துங்க। இப்போ நாங்கள் 2 பேர் பேசுறது ஆவியானவர் தான்। अभी हम दोनों प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा है। அல்லேலூயா। हालेलुया। அவர் இல்லைன்னா நாங்கள் ஏன் பேச போறீங்க? वो नहीं है तो हम कैसे बात करें यहाँ पर? நாங்கள் ஊர்லயே இருந்திருப்போம்। हम तो वहां पर घर पे रह रहे थे। இது வல்லமை। ये सामर्थ, இது நமக்கு தெரியல। இது வல்லமை எப்படி நமக்கு தெரியல? அந்த அளவுக்கு அறிவு நமக்குள்ள வளரலை। इतना ज्ञान हमारे अंदर नहीं आया, इसलिए हमको मालूम नहीं है। इस सारे அந்த வேத அறிவு குறைவா இருக்கிறது। ये वचन के बारे में जो ज्ञान हमारे पास कमी था, அது புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு காலங்கள் ஆகும்। वो समझने के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम लगेगा। நான் வேகமாக பேசினாலும், मैं जल्दी से बोलने से भी, நான் சத்தமா பேசினாலும், जो ऊंचे आवाज में बात करने से भी, நான் உங்களுக்கு மெதுவா பேசினாலும், हम आराम से बात करने से भी, நீங்க அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது। तो आप उतना समझ नहीं सकते हैं। அது டைம் வரும்போது புரிஞ்சுக்க முடியும்। लेकिन उसके लिए जब समय आएगा तब आप आराम से समझ लेंगे। அதுக்கு அப்ப ஆவியன் தெளிவா சொல்லி தருவார்। जब पवित्र आत्मा उसको सिखाएंगे। அல்லேலூயா। हालेलुया। எத்தனை பேர் புரியுது? अब ये सब्जेक्ट मारम हो। समझ गया। सॉरी, சப்ஜெக்ட் மாறும்போது जब ये सब्जेक्ट चेंज होता है, கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு டைம் ஆகும்। थोड़ा ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் இப்படி இருந்தால் ये सब्जेक्ट ऐसे है तो PhD कैसे जो सिखाएंगे? BSc के बाद अभी तो बाल बकिया है, वो गिरी जाएगा। பிதாவையும் கற்றுக்கொள்ளணும்। जो पिता परमेश्वर के बारे में भी हमको நம்ம सीखना எதை है। கற்றுத்தல அவருடைய பிதாவுடைய ஆவி ஆத்மாவை கற்றுக்கொள்ளணும்। परमेश्वर पिता का शरीर प्राण आत्मा के बारे में हमको सीखना है। பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதி இருக்கு நிறைய வசனம் இருக்கு। पुराने नियम में कई सारे वचन में है, लिखा है। அதே மாதிரி ஆவியானவர் குறித்து அப்போஸ்தலர் நிறைய इருக்கு। जो पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरितों का काम में बहुत सारा लिखा गया है। இயேசு பற்றி மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா யோவான் நிறைய எழுதி இருக்கு। यीशु मसीह के बारे में मत्ती मार्क लूका सुसमाचार में कई बातें लिखा गया है। ஆனா மூடித்து புரிய வைக்கிற ஆவியானவர் தான்। ये तीनों को हमको समझाने वाला एक ही व्यक्ति है, पवित्र आत्मा। அல்லேலூயா। हालेलुया। டைம்ல நமக்கு தெரிய வரும்। समय पर, ठीक समय पर हमको मालूम हो जाए। சமகணம் எதை குறிக்கிறது நீங்க சொல்லுங்க இப்போ। आप बता दीजिए उपस्थिति किस चीज को दर्शाता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति मतलब சமூகம், சமூகம் उपस्थिति।
परमेश्वर की அது उपस्थिति, எதை குறிக்கிறது? शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों चीज में उपस्थिति जिस चीज को दर्शाता है। उपस्थिति का मतलब, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का मतलब वो शरीर को पवित्र आत्मा का शरीर को दर्शाता है, या पवित्र आत्मा की प्राण को दर्शाता है, या पवित्र आत्मा की आत्मा को दर्शाता है, प्राण को दर्शाता है। जी, கரெக்ட். आत्मा। आत्मा हमारे लिए आत्मा, आप लोग के लिए प्राण हो जाता है. ये हमारे लिए आत्मा है, आपके लिए प्राण। हिंदी में दोनों मिलके आता है, कभी किस जगह में प्राण आता है, नहीं, तमिल के लिए आत्मा. हाँ, हाँ। नहीं, कोई बात तो नहीं. इसलिए बॉडी, सोल, स्पिरिट, आप लोग आत्मा को प्राण बोलते हैं. इसलिए आप जिस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्राण को आत्मा बोलते हैं. सही में प्राण को आवी बोलता हूँ. नहीं, इसलिए आप जिसको इंग्लिश आता है सोल, बॉडी, स्पिरिट करके लिख दीजिए। अभी सोल है, वो சமூகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. वो उपस्थिति को दर्शाता है। सोल के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा भी बोलते हैं, प्राण भी बोलते हैं। ये दिक्कत है, हाँ. लेकिन तमिल में दिक्कत नहीं, इंग्लिश में दिक्कत नहीं, है ना। सो स्पिरिट को हम बोलते हैं आवी, आवी बोलते हैं. स्पिरिट को बोलते हैं। हर जगह में हमारा आवी होता है, यहाँ पर आत्मा ही होता है। हर जगह में स्पिरिट क्या होता है? आत्मा हो जाता है। शरीर कोई दिक्कत नहीं, हम आवी बोलते तो ये दोनों चीज हमेशा थोड़ा फर्क होते रहता है। तो इसलिए जिस चीज को आप प्राण बोलते हैं, आप समझ लीजिए जो हमारे अंदर की आत्मा, मन, हृदय, ये इसको हम बोलते हैं सोल, है ना, ये प्राण। சோல் சமூகம் வந்து சோல்ல தான் அட்டாக் ஆகுது. सो उपस्थिति वो हमारे मन में है या प्राण को दर्शाता है। அதான் இங்க போட்டிருக்குது பாருங்க, சோல். அந்த வசனம் வாசிங்க, संगीतम 51:11. भजन संहिता 51:11 को अंग्रेजी में पढ़े ना? நான் அங்கே हिंदी में पढ़ो बस. हिंदी में ही पढ़ लिए। जी, 51:11। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे हम्म और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 51:11. உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் तेरे सामने से मुझे ना निकाले, உமது பரிசுத்த ஆவி என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமல் இரும். अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப சமூகம் என்பது ஆத்மாவோடு இணைகிறது. जो यहाँ पर जो उपस्थिति है, जो हमारे प्राण के साथ मिल जाता है, வல்லமை என்பது मतलब सोल। ஆவியோடு இணைகிறது. सामत मतलब स्पिरिट के साथ मिल जाता है। நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்றா அதான் வல்லமை. जो जब हम एक शब्द बोलते हैं उसमें सामर्थ्य है, स्पिरिट है। நூற்றுக்கு அதிபதி जो एक सुबेदार, उसने बोला आप नया एक, नियम एक सुबेदार है, ஒரு जो வார்த்தை சொல்லுங்கன்னாரு. आपने एक शब्द कहो प्रभु, அப்ப அந்த வார்த்தைனா என்ன? அதான் வல்லமை. वो शब्द मतलब क्या है? सामर्थ्य है। அந்த வார்த்தை இயேசு சொல்றாரு, ஆவியான போய் ஹீலிங் பண்றாரு. जो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, पवित्र आत्मा ने वहां पर छंगाई आना की। सुबेदार बोलते आप हमारा घर में आने का जरूरत नहीं, आप एक बात बोलो बस, काम खत्म. बात इधर बोल रहे हैं, काम बोल रहे हैं, इसका पास बोल रहे हैं, हीलिंग काम हो रहा है, उनका घर में हो रहा है. कैसे होगा? इसको बोलते हैं, वो बोल रहे मेरा के भाई साहब बोल रहे एक बात बोल दो, मेरा सैला ठीक हो जाएगा. फिर बात कहाँ पर बोल रहे हैं? ईसा मसीह ये बोलते, भाई साहब बोल रहे एक बात बोल दिया, वो ठीक हो जाएगा. ठीक हो जाए किसका पास बोला? ठीक हो किसका पास? वो भाई साहब को बोल दिया, सुबेदार को बोल दिया ईसा मसीह ने. ईसा मसीह ने बोले एक बात बोलो, मेरा सैला क्या होगा? जो सुबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से बोला कि प्रभु आप मेरे घर के अंदर आने का मैं योग्य जरूरत नहीं नहीं, हूं, लेकिन आप एक शब्द कहे, मेरा जो नौकर है चंगाई हो जाएगा। क्यों? प्रभु उसको और यीशु एक मसीह ने विश्वास क्या है, बोला? सुबेदार के एक विश्वास है, ईसा मसीह एक बात बोलने से मेरा सैला चंगा हो जाएगा. फिर ईसा मसीह सुबेदार किसका पास आता है? ईसा मसीह के पास बोल रहा है. ईसा मसीह बोला एक बात बोला, किसका पास बोला? वो सुबेदार का बोला, लेकिन हीलिंग किसका हो रहा है? सुबेदारी की नहीं बोला, जो उनका नौकर जो कई किलोमीटर का आदमी बैठा हुआ, उसको उस टाइम पर हीलिंग हो रहा है.
उसका काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। क्यों पवित्र आत्मा काम किया? ये काम नहीं है। पिता बोलते हैं जमीन बन जाओ, ये धरती बन जाओ बोल रहा है। इसका कौन बनाता है? जब प्रभु ने कहा धरती बन जाओ, कौन बोलता है? पिता ने बोल दिया। परमेश्वर पिता ने बोला है, जिसने किया है। कौन कर रहा है वो काम है? वो आसमान से बोल रहा है जमीन नहीं, कुछ भी नहीं इधर, जमीन बन जाओ बोल दिया। कौन बोला? पिता ने बोला। कौन बनाया? पवित्र आत्मा बना रहा है। पवित्र आत्मा काम किया सब कुछ बनाने वाला, ठीक है ना? पिता ने क्या बोला? बनाने का काम पवित्र आत्मा करता है। पिता ने अपना वेड को निकाला। वो वेड था यीशु है, वो था मसीह है। वो वेड से मसीह काम करता है। वो जाकर जमीन बनाने वाला कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों? उसका हमारा नॉलेज थोड़ा मतलब கொஞ்சமா இருக்கிறது। जो पिता ने कहा उजियाला हो जाओ, जमीन बन जाओ, तो वो पिता ने कहा वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो उजियाला बनाने वाला, वो जमीन को बनाने वाला कौन है? पवित्र सूरज को आत्मा। बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला पवित्र आत्मा काम करता है। बनाने का काम पवित्र आत्मा करता है। इसलिए ईसा मसीह बोलते हैं अगर मेरा भी आप दुख से एक बात बोलने से चल जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में एक दुख से बात बोले तो वो दुनिया में भी आपका ऊपर भी आपका ना करे माफ क्षमा नहीं नहीं करेंगे। होता है। जो पवित्र आत्मा के क्यों? विरोध पवित्र में आत्मा शुद्ध होती है, इतना शुद्ध होती है। அவளை பரிசுத்தமா இருப்பார் பரிசுத்தாவியானவர்। जो पवित्र आत्मा इतना पवित्र है। அல்லேலூயா। हालेलुया। அந்த ஆவியை நமக்குள்ள வந்து நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறார்। जो वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमें पवित्र करता है। பவித்திர அதாவது ஆவியானவர் இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாது। जो बिना पवित्र आत्मा से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। உங்களுடைய சரீரத்தில் பலவீனம் இருந்தால் आपके शरीर में कोई कमजोर है, அதுக்கு வல்லமை வேணுமா? उसके சுகம் लिए- வேணுமா? விடுதலை வேணுமா? आप कमजोर है तो आपको क्या चाहिए? जो उसमें छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। விடுதலை செய், விடுதலை छुटकारा, चंगाई। விடுதலை சொல்லுவோம் லாஸ்ட்ல। ना फर्स्ट है பாதுகாப்பு। ना फर्स्ट है सुनेंगे। ஃபர்ஸ்ட் வந்து हाँ, சுகம், चंगाई चाहिए। हाँ, அதுக்கு அடுத்தது ஆரோக்கியம், ஆரோக்கியம், स्वास्थ्य। हाँ, ஆமாம் விடுதலை, விடுதலை। छुटकारा। अभी आप कमजोर हैं, आप कमजोर है तो आपको चंगा चाहिए या छुटकारा चाहिए, या आपको कोई स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा हेल्थी बॉडी चाहिए, हेल्थ चाहिए। क्या मांगेगा आप? परमेश्वर से क्या मांगेंगे? छुटकारा मांगेंगे, चंगाई मांगेंगे, या प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे करके मांगेंगे? आप कमजोर है, इस आप कमजोर है तो आप कैसे प्रभु से मांगेंगे? हमें इस जगह में कमजोर है तो आपको क्या जरूरत है? छुटकारा का जरूरत है, चंगाई का। जो मांगेगा ना वो पवित्र आत्मा अपना वो शरीर का काम करेगा। ये उसका வல்லமை வந்து வல்லமை என்ன சொல்லுவோம்? सामर्थ। सामर्थ्य काम करेगा। ये समूहम। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा, या उनकी उपस्थिति जो हमारे जीवन में काम करेगा, या उनका शरीर हमारे जीवन में सुरक्षा, चंगाई हमारे जीवन में काम அது करेगा। மூணுமே நமக்குள்ள இருக்குது। ये तीनों चीज हमारे अंदर है। அது ஒவ்வொன்றா விடுவதற்காக ஒவ்வொரு வேலையை ஆவியானவரே செய்கிறாரு। तो इसका हर एक काम को करने के लिए पवित्र आत्मा ही काम करता है। அது எப்படி செய்யறான்னா எப்போ என்ன வேணுமோ அதுக்கு அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும்। जब ये सारा चीजों में केवल पवित्र आत्मा जानता है हमको क्या जरूरत है। நீங்க சுகம் வேணும்னு கேக்குறீங்க, हम प्रार्थना कर सकते हैं चंगाई के लिए। சுகனா என்ன? चंगाई मतलब ஏற்கனவே வியாதியா இருக்கிறீங்க, जब हम बीमार हैं அதாவது சுகம் கேக்குறீங்க। इसलिए हम चंगाई को मांग रहे हैं। ஆரோக்கியம்னா என்ன? जो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? வியாதியே இல்லாதவருக்கு ஆரோக்கியம் வேணும்। जब बीमारी नहीं है हमारे लिए स्वास्थ्य जरूर, संतुष्ट जरूरत है ना, संतुष्ट हेल्थी, அதுக்கு ஆரோக்கியம் வேணும்। उसके लिए संतुष्ट चाहिए। விடுதலை வேணும்। तो उसके लिए छुटकारा चाहिए। இல்ல விடுதலை வேணும்னா ஏதோ ஒரு கடல்ல மாட்டின்னு இருக்கிறீங்க, கடன்। जब हम किस खर्च में पड़ गया, उतार ले लिया, तो आपके लिए क्या चाहिए? छुटकारा का जरूरत है। அது ஆவியானவர்கிட்ட நீ கேட்கும் போது அவர் உனக்கு அனுப்பி அந்த வேலை செய்கிறாரு। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांगेंगे, परमेश्वर उसके अनुसार काम करता है। அல்லேலூயா। हालेलुया। வேதத்துல நிறைய அவர் செய்த காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது। जो इस प्रकार की
बाइबल में कई सारे परमेश्वर का काम जो पवित्र आत्मा ने जो काम किया है कई बातों लिखा गया है। இயேசுவே 66 அற்புதம் செய்திருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டில். प्रभु यीशु मसीह ने 66 अद्भुत काम को किया करके नया नियम में लिखा। அதை செய்தவர் ஆவியானவர். उसको सारे 66 अद्भुत काम को जिसने किया है वो पवित्र आत्मा है। தண்ணீரை ரசமாய் மாற்றுவர் அவர் ஆவியானவர். पानी को ताक रस में बदला वो पवित्र आत्मा है। அவருக்கு முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை. उससे असंभव कुछ भी नहीं है। அதனால்தான் ஆவியானவர் என்பது पवित्र आत्मा का मतलब எங்கும் அசைவாடிக்கொண்டே இருப்பார். हर जगह में वो मंडलाता है। எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஆவியானவர் இருப்பார். जहां पर भी जाए वहां पर அதனால पवित्र இயேசு आत्मा है। மரிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. जब यीशु मसीह मरना था, இயேசு மரிக்கலனா यीशु मसीह नहीं मरा तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? இயேசு மரிக்கலனா என்ன நடந்திருக்கும்? यीशु मसीह नहीं मरा तो क्या हुआ होगा? यीशु मसीह ईसा मसीह नहीं मरा तो क्या होता है? क्या हुआ? हाँ? नहीं मतलब उधर ही रहता, मरा नहीं लेकिन सबको पाप को वो मिटा रहा है. क्या हो सकता ना, हम दोनों नहीं आ सकते. ईसा मसीह इधर आता था, वो आकर प्रचार करता रहता था आप लोग ले. जब वो- यीशु मसीह मरने के पहले भी पापों को क्षमा किया था, वो तो क्षमा करेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा होता, वो खुद ही आके इधर आके प्रचार प्रचार करता, करना हम नहीं शुरू- आता। उसका तकलीफ ज्यादा होगा. इसलिए उनका नहीं अभी हम वो मरने की मर के उठ जाता ना, इसलिए हम आ जाते हैं. ओके, वो मर करके जिंदा उठ गया ना, वो कहाँ चले गया? जाकर के पवित्र आत्मा को भेजा. पवित्र आत्मा के भी अकेले नहीं कर सकते काम, कोई उसको भी आदमी चाहिए. ठीक है ना? वो कौन चाहिए आदमी? उसको बात को कौन सुनता है? वो चाहिए. झूठ बोलने का वो अंदर नहीं जाता है. गलत काम करेगा उसके पास नहीं जाता है. आप कह रहे थे आत्मा और शरीर, ये शरीर ना होगा तो आत्मा की पहचान कैसे होगी, वो मेरे को नहीं समझाया आपने। जैसे शरीर आपका मिले अपनी नहीं, ना, आपका आत्मा अंदर होती है। आत्मा है ना, अभी आपका अंदर आत्मा है नहीं है? नहीं सर, बोल रहे मैं, आपका अंदर शरीर है, आपका अंदर आत्मा, आपका बस क्या प्राण भी है. ठीक है ना? वैसे पवित्र आत्मा का जो आत्मा होता है ना, आप देख नहीं सकते उसका, लेकिन आपका अंदर जो हवा को आप देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? कोई हवा, कोई पंचर डालते हो तो उसका अंदर बढ़ता तो देख सकते हैं, उसका अंदर हवा बढ़ा हुआ. लेकिन अभी हवा को देख सकते हैं? ये फैन चल रहा है तभी हवा आपको ऊपर आ रहा है. वैसे पवित्र आत्मा भी आत्मा के साथ, शरीर के साथ आपके पास आता है. पहचान में आपका आंख खोल देता है, वो मिल जाता है आपका. आपका आंख भी खोलेगा. आपका आंख 6 आंख होती है. कितने आंख है? नहीं आपका जो आंख है ना 6 आंख होती है. कितने आंख होती है? 6 एक मनुष्य की 6 आंख होती है बाइबल में. 6 आंखें हमारे लिए आत्मा के लिए 2 होते हैं, शरीर के लिए 2 होते हैं. शरीर में 2 है, आत्मा में 2 है. अभी और अपने प्राण चश्मा में बना 2 हुआ, है। आपका कितना आंख बन गया? शरीर में 4 आंख बन गया. चश्मा उठा रहे तो आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा. चश्मा का अंदर आप देख रहा है, चश्मा भी एक आंख है. ठीक है ना? वैसे आपका मन का आंख खोल गया ना, वचन के देखेगा. अगर आपके प्राण का आंख खोलेगा तो आप पवित्र आत्मा के देखेगा, शरीर का. शरीर उसका मतलब शैतान के भी देखेगा आप. लेकिन हम शरीर आंख में क्या देख सकते हैं? जो आदमी कुष्ठरोग बन गया, उस ठीक हो गया तो वो देख सकता है. लेकिन किसका नहीं देख सकता है? जो हवा का नहीं देख सकता है. लेकिन हवा हमारे ऊपर लग रहा है. हालेलुया. कितना आदमी मालूम हो गया अभी? ठीक है, अभी आप लोग क्लास होगा. अभी एक चैप्टर को आपने क्या करना, उसको निकाल करके அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों का काम पहला अध्याय को आप ले लीजिए. அதில் நீங்கள் ஆவி ஆத்மா சத்தை பிரிக்கணும். उसमें जो अभी आपने सीखा है, जो समझा है, उसके अनुसार उसमें पवित्र आत्मा का शरीर, प्राण, आत्मा को सोल
बॉडी स्पिरिट को आप निकाल दीजिए। कोई भी आएगा वो लिखो, 6 से आपको जो समझ मिलता है आ वो रहा है लिखो, वैसे आप लिखिए। அதை பற்றி கவலை வேணாம். उसके बारे में गलत सही है करके चिंता मत कीजिए। जो बात आप समझ आया उसका अनुसार आप लिखिए। அது எங்கெங்கெல்லாம் தெரியுதோ அது லிக்கும். அது வந்து எத்தனை வசனம் இருக்கு? அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் எத்தனை வசனம் கேளுங்க. प्रेरित का पहला अध्याय में कितना वचन है? 32 होता ना. ये சமூகம் வல்லமை பாதுகாப்பு. उसमें प्रेरितों का काम पहला अध्याय में हमको ये निकालना है कि पवित्र आत्मा का जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति कि उसका सोल बोलते हैं वो काम किया है। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ स्पिरिट ने काम किया है, जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का शरीर लाइक बॉडी ने काम किया करके उसमें से हम वचन से हमको निकालना है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय में 15 मिनट आपका टाइम है. तो 15 मिनट आप ले लीजिए, वचन का अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसमें हम अलग करके देखेंगे। एक बार वचन पूरा वचन को पढ़ो, दोबारा आप ढूंढना शुरू करो, वो मिल जाएगा आपको. 1-2 मिलेगा, ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि MTH ऐसा क्लास है. अगर आप MTH क्लास का सर्टिफिकेट ले लेगा ना, फिर आप कुछ भी नहीं मानो तो हमारा गाली देगा सारा आदमी आकर के. हालेलुया. अभी 15 मिनट टाइम स्टार्ट हो गया. அன்பிற்குரியவர்களே, சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் 1. வடமாநிலத்தில் 300 திருச்சபைகளை உருவாக்குதல். 2. மாதம் ஒருமுறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம். 3. ஊழியர்கள், சபை தலைவர்கள், சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு, அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம். 4. டிவி ஊழியம். 5. பத்திரிகை ஊழியம். 6. CD DVD ஊழியம். 7. பவர் கேம்ப் அக்னி அபிஷேக முகாம். 8. உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம். 9. நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம். 10. 24 மணி நேர ஜெப மையம். 11. சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி. 12. சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம். 13. மருத்துவ முகாம். 14. ஜெயில் ஊழியம். 15. கைப்பிரதி ஊழியம். 16. கிராம ஊழியம். 17. மிஷனரியை உருவாக்கும் ஊழியம். 18. நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள். 19. சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம். 20. இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள். இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது. 21. தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல். இதனுடைய நோக்கங்கள்: 1 கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல். தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:10.